Thank you first of all for joining us today. My name is Yogesh, and right now I am here on behalf of Vacom India, who is conducting this workshop for you along with the youth team. Thank you, Rajesh, for letting me in. Okay, so today basically I am with Vacom as a illustrator and as a photographer. Okay, we try to understand the basics of photo retouching and editing and how you should process them in Photoshop and Lightroom just after clicking them. Okay. First, I'll try to give you a brief introduction about Vacom India and who we are, a little bit background, and then Harshdeep will take over and start his session regarding the actual photo editing techniques and retouching workflow. Okay. So I think now you can see the presentation right now in front of you. Yeah. Okay. So I'm already very sure that this is going to be a very interesting session as you guys are already keen to learn about retouching and photo editing, which is why you are here with us today. Uh, so before I start, let me introduce Vacom India to you. Okay. So right now, basically we are a Japanese brand. Oh, okay. Few You people cannot see your screen. a lot of people can't see the screen. Yeah. Okay. PPT not visible. That's Lalit. Let me share the entire screen. Then. Let me share the entire screen. Mm-hmm. Yeah. I hope it is visible now. Yes, yes. So before we start, I would like to give you a little bit background about us, what is Vacom and what we are into, and most importantly, how Vacom products can boost your or even change your whole editing workflow forever. I think most of you are already aware about Vacom because who are into editing and retouching. I think already aware about Vacom products like pen tablets and graphic tablets. We are basically a Japanese brand and we manufacture pen tablets and various displays for serious creative tasks such as editing, compositing, or graphic designing. Okay, so right now we are not only the global leader in the pen tablet industry, but we are also mainly the innovators in this field. By seeing the our number of patents, you can get a pretty much good idea about how rapidly we are innovating various technologies to help artists around the globe. Okay, and till date we are putting our best efforts towards innovating the best products that can be used by professional photo editors and graphic designers. So, yeah, as I told you that Vacom is a Japanese brand, so you can get a pretty much good idea why our products are so reliable. Okay, we are founded in 1983, almost 37, 38 years back. Uh, there are so many technologies that we have innovated, and like the EMR technology. So our pens and our stylus are all battery free and wireless. There's no battery in it, thanks to the EMR technology. Okay, and similarly, there is gesture controls, multi finger touch. These are some of the brands that use our technology. Right now, not only the artists are our customers, even brands like Lenovo, Samsung. I think you must remember the Samsung Note. There was a Samsung Note with a stylus. There was a stylus with it, right? Mm-hmm. Which was battery Yeah. free. That stylus was Mm-hmm. from our own technology. Wacom uh, provided Samsung that stylus and the technology inside. Uh, some more companies like Dell and HP are using it. Okay, so all of us see movies, right? Like Harry Potter, any Disney movie, but there are so many animation and
compositing, 3D stuff. So mainly, all major studios are using our devices like the Cintiq or the display devices to do the post processing and compositing and post production works such as the compositing, the Nuke workflow, and the animation studios are using it. So you can find us in any good studio or even some design companies. Okay, software compatibility. Wacom products basically are compatible with more than 3,000 softwares, because as a photographer, we always care about the compatibility stuff. We have so many different programs to use, like Lightroom is different than Photoshop and Cinema 4D. If we are from graphic design background, we have some more programs. So thankfully, our device is always compatible with even with simple programs such as the PowerPoint and Excel, to the more complicated programs like Nuke and 3D Max. Okay, Yeah. so basically these are the product lineup that we offer right now. Uh, there are mainly two type of devices. Like one is with the display and the other one is without the display. So if you are just starting out, what I would suggest, or even if you can ask some friends that use it, the non-display one, you can start with them. They are pretty cost effective and very durable. If you invest it in one time, it will last you around 4 to 5 years easily. The model that we suggest is the Intuos Pro, small one, for specifically photo editing and retouching. Okay, Sure. this is the new one. I think Harshdeep also using our product right now. I don't know which model he's using. Yeah, I'm using one by Wacom. Okay, one by Wacom. This is Yeah. the starting one. Huh? So from Harshdeep, from how many years that you are into Wacom and you are using it since? I'm using it since last 4 years, I guess, and yeah, it is a very wonderful product. Uh, Throughout this presentation, I'll be showing everybody each and everything what the tablet does and how does it, make the work very easy. It's flawless actually, That would and be really working on a yeah working on that a would be. traditional keyboard is it's not that cost effective also at Mhm. certain times, if you see, because time is actually a money for Yeah, us editors. Yeah, definitely. and Time is yeah, money. so yeah, I think you have much to show here. I can take over. Yeah, you can take over. It is just Yeah, yeah, uh, these are some of the photographers that are connected with us, and yeah. I'm happy to tell you all that this is our moral responsibility to keep this industry growing, because as the industry grows itself, market also grows. So you can connect with us right now. More than 1 lakh photographers are connected with us globally. So I think the best way to do this is via social media. You can join us on Facebook, Instagram, even LinkedIn now. You can connect us through LinkedIn also. Okay. So check out, just type Wacom India on any social platform and you can get connected with us. We also highlight uh, uh, works from various photographers time to time, and we keep conducting this kind of workshops for you, which will be a good opportunity to you. Okay, I think now Hardeep can take over and start explaining. Hardeep is actually the best person to explain how these uh, tablets are useful. And yeah, yeah, thank you, yeah, Hardeep. sure. I'll stop sharing. Yeah. How is everybody here? So basically, I as Rajesh told already that who I am and from which field do I belong to. So basically, I'm a sailor and a photographer by my hobby, and I love to do photography. Yes, but interestingly, I love to do much of photo editing. I'm much into photo editing and photography as well. I do little bit of graphic designing too. So let's decide something. I have something to say that if anybody is having questions, they can raise their hand, and the
organizers will, let you speak. First thing is this. Second thing, we have to be interactive, right? When I ask something, you have to be responsive to it. I'll be seeing your Q&As here. You can ask the questions. I'm good. And also, there's one more thing, that, there's a poll created here. So I want everybody go to this poll and, give their inputs. I'll give approximately 1 minute to everybody that you can go to this poll. Hi, Abhishek, how are you? Yeah, so since we are here, let's know about the background of, photo editing. Why photo editing is required. Hope everybody is comfortable when I speak in English or Hindi, whatever they want. I am okay with both the languages. Okay, let's talk a little bit about the photo editing. So why do we need photo editing? I think everybody is having the answer to it. Why do we need photo editing? Because they want to look very beautiful, or you want to make a scene very beautiful, or you want to make something look very presentable. That is the reason we use photo editing. So there are different types of tools to do it. We'll talk about it later. But yes, uh, everybody understands that there was a thing which is known as a camera. There is a thing which is known as a camera, but at olden times, in 1885, the camera was first developed. Okay, which was marketed. Actually, the first marketed camera was in 1885, and it used to look something like this. If you can see on the screen, everybody can see it on the screen that how the camera used to look. Okay, Hindi. Okay, I'll be doing Hindi English both. Done. Yeah, no worries, no worries. So this was the camera. ऐसा लिखता था camera उस time पे. And see, you can see this is the scenery, and it was projected to this wall inverted. So, and then this painter used to paint it. So it is not it is entirely not photography. It is just painting. People used to paint it, and then they used to create scenes. Okay, and then addition to it came this thing. It was a pinhole camera like thing, and it projects a scene from one place, and it directs it to your this board, and then the person used to draw it. So it works on the same principle, 1 by f equals to 1 by u plus 1 by v. The same optical principle. Pinhole camera works on same principle. Periscopes work on same principle, and your cameras work on same principle. So even though the technology has advanced too much, the basic is same. No matter which camera you're using, what you are using, you're on a cell phone, you're on the biggest, heaviest camera, you are using Red, you are using Canon, you are using anything, the basic principle remains the same, right? So in this, when they were using this technique, they were painting. So whenever there was a problem, they can, repair it. They can retouch it. They can do so many things to it, if something happens. Then when photography came into a digital thing, in this digital world, there was, our technology was lacking. तो हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को उस टाइम पे. We could not edit. हमने बस फोटो क्लिक किया, फोटो केमिकल से उसको साफ किया, फोटो को प्रिंट किया, एंड सडनली व्हाट हैपेंस इज यू कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू इट. Few companies like Adobe and so many other companies took this point very seriously, and they started making a photo editing software. Adobe is leading, Aperture, Capture One, they are leading. Corel is also the one which is leading in everything. Yeah, so this was little bit background of the photography. Hope everybody understood this, right? Now let's talk about principles of photography. So what is photo editing? You already know. Okay, it is altering an image. Photo editing is nothing but first of all, let me tell you that uh, I'll not be taking it much into theory. I'll be showing you practicals as well. Theory is just that the beginners can connect.
I know most of you are advanced, most of you are intermediate, but I want that beginner should get connected to what I am speaking, the terminology, and then we'll move on. Right. So just bear me for with me for 15 more minutes with this theory, then we'll dash damp into the practical thing. Okay. So altering images, photo editing, right? So there are many mediums. You can do it by digital photography. You can do it by retouching. There's so many mediums, right? We don't have to talk about it. You know each and everything. Then basic of image editing is, there are some super formats. So some of the formats, right? Some of the formats are JPEG होता है, JPEG 2000 होता है, JPEG होता है, ठीक है, JPG होता है. Then there is GIF, there is BIMP, there is TIFF, there is PDF. So many formats are there, but there is a super format. ESP होता है, AI होता है. The super format, which is raster type of photographs, raster and vector. So what's the difference between raster and vector? And what are the softwares which are used for editing a raster photo and editing a vector photo? We'll be learning this also along with. So rasterization is making a vector image into a raster thing, which I'll tell you right away. So you can spot the difference here, right? These on the left are JPEG, PNG, JIF, PMP. These files are there. On your right, it is ESP and SVG format. So in JPEG, if you zoom, it becomes Super Mario, right? It becomes 8-bit. It's pixelating. It's annoying to watch this. But when you are in vector, you can do endless zooms, and it you can zoom further and further and further till infinity. There's no problem, right? This is vector, and generally we use softwares for it. This is Corel Draw, Adobe Illustrator are the most common used in the industry. Now painting with pixels, this is when you do it in Photoshop. This is when you do it in illustrating software, right? So you can see the difference, right? See, pixels, and this is flush finish, right? Spot the difference again. This is the raster image. This is the vector image. Raster image is much clear. It shows pixels, but yes, it is, when you zoom, it's started pixelating. Vector, whereas vector, you do endless zooms, there's no problem, but yes, it looks bit cartoonish. 3D modeling. So what do you understand by 3D modeling? 3D modeling is the trend these days. People make 2D images into 3D very easily. So even though the image on your right is not a 3D image, but it imitates like it is 3D. The image on your left is obviously a 2D image, but what's the difference? How we can see it as this thing? How we are seeing it as a 3D image? The reason is that this image is showing three basic things: highlights, contours, and shadows. All three basic things are being used into this. And okay, am I not full screen? Okay, all three things are not into this. Yeah. So you already now, by time you know already what is raster, what is vector, right? So let me know. Everybody, yes, please, you can tell me what is raster and what is vector. I hope everybody know this now. Till time everybody understands difference between raster and vector. That's one thing. And everybody understands what Photoshop can do with, and what this Illustrator software can do with. Okay, I think we are clear with this. Now, another thing is, in this, now the practical thing starts. I'll be taking practical from here. So there are different tools in Photoshop. Though this entire webinar is not about Photoshop, but yes, the basic principle I'll be teaching it in Photoshop, but you can apply this principle to each and everything, every software. Even it is a cell phone, it is anything, you can apply this technique to any software, almost any software, right? So let's start it.
अब हम लेते हैं पहले बताता हूँ मैं आपको एक्चुअली व्हाट इज फोटोशॉप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है कि ना, फोटोशॉप में क्या होता है, आर्टिस्ट के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती थी कि ही कुड हैव टेकन ओवर, यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट सेम पैलेट्स ही वुड हैव यूज्ड एंड पुट इट इनटू अ फोटो, और वो एक अलग डिफरेंस बना देता था। बट आर्टिस्ट के पास क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता, मतलब हम आर्टिस्ट जो हैं, फोटोग्राफर्स, वी डोंट हैव मच टू डू। सो देयर इज अ मैजिकल सॉफ्टवेयर विच केम and which was Photoshop, or you can say any other editing software which it is, ठीक है। अब क्या हुआ कि ना लोगों ने सोचा कि फोटोशॉप पे लोग इमेजरी एडिट कर लेते हैं, इतने प्यार से सब कुछ हो जाता है, देन व्हाई नॉट टू ब्रिंग इट इन रियल लाइफ, राइट। तो देयर इज अ स्पूफ फ्रॉम इंटरनेट विच आई हैव टेकन एंड आई प्रेफर टू शो इट इन ईच एंड एवरी क्लास, which is this. So there's a gimmick that there's a Photoshop fairness cream which you put it on your face and you become, a model very easily. That's what Photoshop really does, that it does, but you have to learn it. That's the technique we are going to show it here. So I'll be having some samples, some of my clicked photos, which I have never edited even till date. We'll be doing that. So the preferred format is RAW. People say that you should click in JPEG. Yes, you can click in JPEG. It's up to you. It's subjective. I do click it in RAW every time because I have full openings. I can do anything with my photo then, which I have done mistake in the event. I can clear it right away. तो अब CR2 फोटो को या रॉ फोटो को या NEF फॉर्मेट या ARW जो भी फॉर्मेट आपके पास है, उसको खोलने के लिए जनरली यू डबल क्लिक है एंड इट Photoshop automatically launches, the magical world of Photoshop automatically launches. Let it open. And here it is. So we are at the magical world of Photoshop, and this is how the camera raw looks. So this is not the Photoshop. This is just the camera raw 12.4. So if you have, the original version of Photoshop, the paid version of Photoshop, I think it does open into this. It opens like this if you have the paid version of the thing. So this is how the raw photo opens. You got it? I'll show you another way to do it. I'll cancel it from here. I'll close my Photoshop. In Windows also you can do this. Open with Photoshop. Okay, that's very easy, I think. And bang, it gets open. Cancel it, it goes away. Then there's one more way. You say open here, and then you locate your thing, you go to webinar, you allow it, you go to youth edits, and you take the photo. I'll take this one. Yeah, I'll take this one. This is how it goes, right? One more time. I'll go to primitive way, which I was using before. I'll do it like this. I prefer to do it like this. So this is how you open the photo in Photoshop. These are all the tools, mandatory tools we can use. So if you're having a Wacom tablet with you, this is very easy. You don't have to, you go to your mouse, then do a right click, then press it, and then you do the slider. No, it is very easy with Wacom. You just have a stylus, whole screen is in your command. Wherever your hand goes, you can use it. Wherever your hand doesn't go, it will never click it. So in the mouse, you have a problem see, if you're doing retouching, right? Wacom helps you. If you're doing retouching, you can very easily do your screen thing. You see, you can zoom it and then you can flushly use your mouse. But yeah, with the mouse, I think there would be a bigger problem though. Then yeah, this is Photoshop. Let me move to another slide so that you can get this better. Yeah. So we already know there are two major softwares which is developed by Adobe. Okay, and Adobe are very much compatible with it is flushly compatible with Wacom. So you do anything, Wacom, treats it like it was made for Wacom, right? The softwares are very good, Lightroom and Photoshop. So Lightroom is for editing. It is not light anyhow, so don't worry.
The Lightroom is also a professional this editing software, and it's for the photographers and to do little bit of photo corrections. So if you are using Lightroom, there's one fun fact. If you're using Lightroom, what you can do is you can participate in any of the world photography contests, right? You do anything, you use anything, any part of the software, until unless you are trying to manipulate much, you can participate. It is like a legal thing. If you say I have edited in Lightroom, yes, you are welcome. But when you say Photoshop, they get spectacle. They start thinking that it might be manipulated, the background might be changed. So many things you can do in Photoshop is a manipulating master. It is a magical world. So Photoshop is having one more tool with it. Which is called Bridge, which I have not which I have uninstalled last night due to some issues. But yeah, Bridge is a cataloging partner for Photoshop. It manages the images, how you do it and when you do it, and it gives you a full command to do it. Now when we do talk about editing, ठीक है, तो एडिटिंग में ना दो चीजें होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी दो चीजें होती हैं एडिटिंग में, टेम्परेचर, कलर। ठीक है, अब टेम्परेचर तो भाई किसी और चीज का होता है, आग का होता है ना, टेम्परेचर इसका कैसे हो सकता है? तो फोटो इज ऑल्सो हैविंग अ टेम्परेचर। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हेन यू क्लिक एनी फोटो, इट इज ऑलवेज क्लिक्ड बाय द कैमरा ऑन अ केल्विन नोट, ठीक है, विच इज 5500 केल्विन। हर कैमरा 5500 केल्विन पे ही फोटो को क्लिक करता है। It's just the software which manipulates it to 2800 Kelvin, 2200 Kelvin, 3200 Kelvin. It's just the software in the camera which manipulates to show it, but the camera clicks it on 5500 Kelvin. So these are some temperature values which I told you. So camera को software बुद्धू बनाता है, या वो बुद्धू actually आपको बनाता है कि मैंने इसको 3200 Kelvin पे लिया है, whereas it has taken it in 5500 Kelvin. The thumb rule for all the cameras remain the same, ठीक है? So now we're talking about temperature. So here it is. This slide stylus here is known as temperature, ठीक है? तो अब आप इसको थोड़ा इधर लेके जाओगे तो ये वार्म टोन में होने लग जाएगा। आप इधर लेके आओगे तो ये थोड़ा कूल टोन पे होने लग जाएगा, ठीक है? देयर इज वन मोर थिंग टू इट। अब एक तो ये हो गया एज शॉट, ठीक है, आपने जैसा कैमरे में क्लिक किया था ये वैसा आ गया, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी इज कनेक्टिंग विद दिस, राइट? आपने जैसा क्लिक किया था ये वैसा आ गया, ठीक है। अब इसमें और ऑप्शंस हैं, आप ऑटो कर लो, ठीक है। ऑटो में द सॉफ्टवेयर नोज इटसेल्फ कि क्या कितनी लाइट होनी चाहिए, ब्लैक कितना ब्लैक होना चाहिए, वाइट कितना वाइट होना चाहिए, ठीक है। द सॉफ्टवेयर नोज इट बाय इटसेल्फ, ठीक है। अभी आप डे लाइट कर लो, डे लाइट इज 3200 केल्विन। तो सॉफ्टवेयर इन the software in my laptop, the Photoshop, the editing software you are using, इसने फोटो को बुद्धू बनाया कि it is not 5500 Kelvin, it is 3200 Kelvin. So you finally change it to 3200. यही कैमरा करता है। When you in JPEG, camera does the same thing which the software is doing, Photoshop is doing it. Cloudy, 2800 Kelvin, right? So this is it. Shades, tungsten, ये सारे different I know most of you might have been using this. Flash, then comes custom. So I'll be doing everything extreme here. So if I'll move a little bit of the slider, you will not see what difference this thing is making. I'll move it either much or either little less, right? So let's do it like itna. Then there's one thing known as tint. Tint adds, a different color to it. Different color means spectrum is having opposite colors. So let's understand spectrum first. I think spectrum would be very very difficult to everybody to understand, but yes, let's do the basic of it. Basic कर लेते हैं, ठीक है? I have to go to a website and yeah. So here we are at Adobe Color. So let the palette get, yeah. So this is the spectrum, right? तो हम इसको जाते हैं, हम इसमें जाते हैं, डबल स्प्लिट पे जाते हैं। डबल स्प्लिट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हम एनालॉग पे जा सकते हैं,
मोनोक्रोमैटिक पे जा सकते हैं, ट्रेड पे जा सकते हैं, ठीक है। अब द थिंग इज कि जो ये स्पेक्ट्रम है ना, इसमें आप कोई भी कलर चूज करो, दुनिया में उसका ऑपोजिट स्पेक्ट्रम का कलर आ जाएगा। सो इफ दिस इज ग्रीन, दिस येलो इज ऑपोजिट ट्राइड टू दिस कलर, दिस ग्रीन इज ऑपोजिट ट्राइड टू दिस कलर। सो अगर जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जनरली, व्हाट दे यूज इज, आई थिंक योगेश माइट explain you this very much better than what I am doing. They know the opposite color of the spectrum, right? So जैसे green के लिए पिंक बहुत अच्छा ऑपोजिट स्पेक्ट्रम जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही येलो के लिए, दिस इज हाउ द फैशन डिजाइनर्स मैचेस देयर क्लोथ्स, यू नो, This makes येलो के साथ, या हेलो, this makes a great combination of two colors also. या दिस, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन है। सो जो भी स्पेक्ट्रम में उसका 360 वैल्यू पे होगा ना, 360 वैल्यू पे होगा, दैट इज द बेस्ट कलर, बेस्ट कॉम्बिनेशन विच कैन शो, ठीक है। दिस इज सेम व्हाट द सॉफ्टवेयर, दिस टिंट इज डूइंग विद यू। टिंट is also adding a different color which is at the 360 spectrum. Let me close this. This is, by the way, this is my Instagram ID. uh Sorry, where's Photoshop? Yeah, so this is what this tint is showing, right? अब अगली चीज आती है which is very much important, you know, exposure. अब आप देख रहे होगे ये फोटो बहुत डार्क है, this photo is very dark, this photo is not good, the photographer who has clicked is very, you know, he was not having much time, or he is not having good knowledge of Photoshop, photography. That's why he has clicked it very dark, underexposed, which we say. No, it is not like that. Generally, photographers click all the photo one stock or two stock down. Stock is a term used for, you know, shuttering down or shuttering up, right? That is the term used for in photography. So I have clicked it this one stock down, okay, but any other person can click it like this, overexposed. But when the photo is overexposed, you cannot do much with it. But when it is underexposed, you can bring it up, more down, whatever you want to do it. Exposure plays a very important role when you are clicking the photo. Always keep in your mind, you're not living in 19th century, you're living in 20th century. You can click underexposed photo and then recover it in the software. Just don't rely on the cameras. Yes, photo editing softwares and graphic designing is a very important part. Now, let's set the exposure. How much value do you think this photo requires? It generally depends upon your taste, right? For me, first of all, this photo is very much yellowish. I'll set the temperature of it. Okay, I'll set the tint of this. I'll see, it's always, editing this photo is always subjective, right? I'll edit it like this. You might differ, but everybody is having their own taste. So I'll keep it bit bluish, right? Towards 65,000 cloudy temperature. Now let's increase the this exposure. I think this goes well with me. We'll come to contrast now. So contrast, what does contrast do? See, what does contrast do? Either it makes dull blacks or it makes deep blacks, right? Every color is having black, right? So अब जो इसमें yellow था ना, if you can see, जो इसमें yellow था वो और black हो रहा है, मतलब towards the darker shade of yellow it is going, ठीक है। और अभी मैंने इसका contrast कम किया, towards the whiter shade of yellow it is going. When we move into the software, I'll explain it to you very nicely with the practical done. Contrast के ऊपर, contrast is a very important part, you know, you cannot skip it. Exposure एक बार को आप skip कर लो कि हाँ मेरे को ये exposure सही लग रहा है, but contrast, video editing, photo editing में cannot skip it. There's no option of skipping contrast. Just because एक फोटो को अच्छी वो चीज बनाती है जिस फोटो में ब्लैक कलर का होता है और व्हाइट कलर का होता है. ब्लैक इज नॉट ग्रे और व्हाइट इज नॉट ग्रे. व्हाइट शुड नॉट बी येलोइश, ब्लैक शुड नॉट बी ग्रेइश. दैट इज द परफेक्ट फोटो, राइट? तो आप टीवीज देखते होगे, ओलेड टीवी, ट्रू ब्लैक, ट्रू पिच ब्लैक, ये कलर वो कलर. दैट्स व्हाट दे आर प्लेइंग विद योर कॉन्ट्रास्ट, दे आर प्लेइंग विद योर आईज. ठीक है, तो इसके लिए कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं. लेट्स जूम इट आउट, राइट? लेट्स जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और कॉन्ट्रास्ट चेक करते हैं. ठीक है, टू मी I'll try to move towards the brighter side. तो मैं थोड़ा whitest contrast रखना चाहूंगा. हाईलाइट्स.
What are highlights? अभी इस फोटो में highlight क्या है? Anybody want to raise hand? They can. And इस फोटो में highlight क्या है? मेरे को ये बताओ आप पहले कौन कौन how to understand bits? Okay, it's very important how to understand bits. We'll talk about it. Okay, raster with pixel. Okay. Nice. In any physical condition, it was in what context? Can I know? Which Wacom tablet am I referring to? I am referring to Wacom, but Wacom tablet one by Wacom. But Yogesh would be, one more time taking this conference, and he'll be asking everybody about your taste. Most of you will, he'll suggest you a better tablet, because without tablet, I think doing editing is very less. Definitely, we can have a one-to-one session after your demonstration regarding this. Exactly. Yeah. Okay, the temperature in any photo. Yeah, it depends, right? Mandal, yes, it depends. You can raise your hand and then you can ask the question. I think the moderator can give him a voice if possible. Yeah, meanwhile, I'll come to this thing. तो अभी अच्छा, मेरे को ये बताना था, आप लोगों से पूछना था, हाईलाइट क्या दिखता है आपको इस फोटो में? Anybody, you can write the answer, right? Come on, guys. I think your whole screen is visible, so they can't see the picture. अच्छा, हाँ, वो भी है. Yeah. So I think इस फोटो में which is the highlight part? Can you see the highlights in this photo? Anybody? I think highlight is in the background and on the glasses. Yeah, it Uh, is. Yes, on her glasses, the background is a little bit highlighted. These lights, these bokehs are very nicely highlighted. But when I shed some this thing, so you see the part we miss while editing, this is a very, very good highlight. This ear thing she's wearing, this is a very good highlight. And when we will try to edit the photo, we'll look into this thing, we'll look into this thing, we'll look into this thing कि ये थोड़ी ना burn हो जाए, ये burn ना हो जाए, ये burn ना हो जाए, but we'll never look to this thing. So अगर to the smallest part, we'll start looking to the smallest part of the photo, the bigger part will never get burned, right? right. Yeah, so that is one thing. ठीक है. अभी what else is the smaller part? This is the smaller part, this is the smaller part. You have to zoom it, you have the power of zooming it, so you can zoom it, right? हम zoom कर सकते हैं, हम सबको पता लगा सकते हैं. अब हम highlights पे आते हैं, ठीक है. अभी हम पहले अपने बड़े सब्जेक्ट्स को देखेंगे, बड़ी चीजों को देखेंगे, बड़े बैकग्राउंड्स को देखेंगे कि उसमें हाईलाइट्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम एक्सट्रीम करके देखते हैं. ठीक है, एक्सट्रीम कर दिया, अब लो कर देते हैं. ठीक है, अभी दे आर टूवर्ड्स द ब्लैकर साइड एंड दिस मेक्स इट टूवर्ड्स द वाइटर साइड, राइट? अब ये बहुत वाइट हो गया, अब ये बहुत ब्लैक हो गया. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिडिल में रखेंगे. लेट्स मेक इट 0 अगेन एंड विल मूव लिटिल बिट टूवर्ड्स द राइट एंड विल जूम, बिकॉज हमें छोटे छोटे उस पर देखना है ना. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हम इसको और लेके आएंगे. आई थिंक ये ओवर, ये देखो ये कम हो गया था ना, अब ये ओवर हो गया. यहाँ पे 76 पे पहुंचते ओवर हो गया. विल कीप इट टूवर्ड्स द मिडल समवेयर. विल कीप इट टूवर्ड्स 28, राइट? 28 सीम्स इनफ फॉर मी. अब देखते हैं, ठीक है. अब मैं इसको 0 करता हूँ फिर से. दिस वाज द बिफोर हाईलाइट वाज पुट एंड दिस इज आफ्टर द हाईलाइट वाज पुट. ठीक है. shadows, highlights and shadows work with each other. So you cannot, if you have done adjusted highlights, 100% you have to adjust the shadows. So do you remember I talked about the spectrum, Adobe color? The spectrum we can choose the color from. 360 degree पे colors होते हैं. तो color spectrum में red is the most visible color. That's why it is used for the danger things and all. तो spectrum में क्या होता है, जो darker color होता है ना, it is referred as towards the family of black. And जो lighter color होता है, which is commonly understood,
it is referred to the family of whites. तो मतलब ऐसे डार्क और हाईलाइट्स और शैडोज से डिफाइन कर दिया है. तो इट इज आई थिंक प्रैक्टिकली अंडरस्टूड कि हाईलाइट्स जो होंगे वो वाइट्स की तरफ होंगे और जो शैडोज होगी वो ब्लैक की तरफ होगी. तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, 360 पे हो गए. तो आई थिंक अगर आपने 360 का एक पार्ट को छेड़ा, आपने हाईलाइट्स को छेड़ा, तो 100% यू हैव टू एडिट द शैडोज एज वेल. अब इसमें शैडोज कहाँ हैं? तो it is not necessary the darker part here is the shadow. No, it is not. It is necessary in most of the time. Yes, most of the time the darker part of the image is the shadow, but it could be a black. So darker part, this is the darker part. Her pants are darker part. Okay. This is the darker part. This could be a shadow, but this is definitely not a shadow. So darker part of the image, most of the time, it is not the shadow, right? This is darker part. This is not the shadow. This is the shadow. Okay. The shadow which blocks the light and appears at its own subject, that is shadow. ठीक है. अब shadows को edit करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको कि you look at your histogram. So this is your histogram, right? अब histogram में this side जहाँ पे बहुत सारे peaks दिख रहे हैं, these peaks are the darker parts and these are the lighter parts towards the white. ठीक है. अब आप मुझे बताओ कि जो डार्कर पार्ट है वो शैडोज में आएगा. ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि डार्कर पार्ट शैडोज में आता है, तो हमें डार्कर पार्ट की तरफ देखना है. ठीक है. डार्कर पार्ट में हम देखते हैं कि आरजीबी में से आरजीबी सीएमवाई के, जो भी आप जिस तरीके से देखना चाहते हो उसको, प्रिंटिंग में जनरली सीएमवाई के they prefer to use as CMYK and most of the designers prefer to use as CMYK. तो हम RGB वाले हैं, तो हम रेड ग्रीन ब्लू करके ही बात करते हैं. तो आप इसमें देखो, यू कैन सी टुवर्ड्स द डार्कर साइड इट इज हेयर. ठीक है. ये आपके ब्लैक्स हैं, ये आपकी शैडोज हैं. कैन यू सी द शैडोज पार्ट? आई थिंक एवरीबडी कैन सी द शैडो पार्ट. और इधर शैडो लिखा आ जाता है. जैसे ही मैं इधर लाता हूँ एक्सपोजर आ गया, इधर शैडो आ गई. तो शैडोज पे आप देखो, शैडोज पे रेड है ना, सियान, वाइट, ये सारे पार्ट्स हैं. अब हम शैडो को चेक करते हैं. ठीक है. हम ऊपर स्लाइडर देखेंगे, कुछ चेंज होता है क्या? देखो आप ऊपर हिस्टोग्राम को देखो. लुक एट योर हिस्टोग्राम. व्हेन इट एक्सपैंड्स टू मच, मतलब टू मच का सेंस ये है कि पीक्स एक दूसरे से दूर होने लग जाएं. व्हेन यू सी कि यार ये तो ओरिजिनल फोटो का पीक है नहीं, पीक इज मूविंग वेरी हाई, तो वो आपका आई थिंक स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा. ठीक है. मैं एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें, आई नो, बट येस. अभी इसको हम जूम आउट करते हैं. ठीक है. हम इसको फिर से 0 पे लेके आते हैं. अब हम शैडोज को देखते हैं. ठीक है. तो एक्सट्रीम करते हैं, हो गई ना, एकदम वाइट हो गई, शैडोज गायब हो गई. बट शैडोज ही तो सबसे अच्छी पार्ट होती हैं किसी चीज़ की. देन वी कम हेयर, हमने इसको ब्लैक कर दिया, ये सब बर्न हो गया. यू सी दिस ब्लूइश, दिस ऑल गॉट बर्न. और हिस्टोग्राम का हाल देखो, वाइट सारे शिफ्ट हो गए, टेंट्स पे शिफ्ट हो गए सारे वाइट्स. अब हम इसको लेके आते हैं सेंटर में फिर से अराउंड इतना. अभी हमें देखना है हम फोटो को डार्कर बना रहे हैं और लाइटर. तो मैं जरा सा भी आगे लेके आता हूँ तो हर सीट स्टार्ट्स गेटिंग बर्निंग, वो उसमें बर्निंग पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा भी इधर लेके जाता हूँ तो ये वाइट बर्न हो जाती है. ठीक है. I have to stay somewhere in center of the center and the whites. तो जब मैं सेंटर बोलता हूँ, this is not the center, 0 is not the center. Center is from this to this. इसका जो सेंटर बचेगा ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का, उसके सेंटर में जाना है मुझे. I have checked, I have zoomed the parts. I am checking again which is the best part, which is the not. और ये हम ले आए जूम पे. ठीक है. अभी शैडोज तक आई थिंक कोई भी किसी को प्रॉब्लम है ना, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं. आई कैन आंसर, आई एम हेयर टू आंसर, ऑलवेज हेयर टू आंसर. तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. अभी शैडोज तक what cameras does Photoshop Adobe Camera Raw support? Yeah, there is the entire list of the cameras on their website कि क्या क्या वो support करते हैं. I think it is supporting most of the cameras. But अगर वो support नहीं भी करता है ना, तो आप अपने cameras के preset ला के export कर सकते हो अपनी XMP settings को, या फिर
बहुत सारी सेटिंग्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने कैमरा के, और एडोब विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज सेटिंग्स टू यू, बट अभी तक सारे कैमरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो लेटेस्ट कैमराज हैं मिररलेस में आए थे, और 800 ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था रॉ को, अब वो कर रहा है, और कुछ लेटेस्ट कैमराज अभी भी नहीं कर रहे हैं, बट वो XMP डालने के बाद वो कर जाते हैं सपोर्ट। एंड एडोब इज आई थिंक वर्किंग हार्ड ऑन इट, बट यस। अभी और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? अच्छा मेरे को बताओ, अभी शैडोज तक हमने कहाँ से पढ़ा? यस, ग्रेडियंट्स पे हम मूव करेंगे। इट इज अ वेरी गुड थिंग। ग्रेडियंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ग्रेडियंट्स क्या करता है? ग्रेडियंट ड्यूअल शेड में काम करता है, स्प्लिट टोनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लकी यस, ग्रेडियंट के लिए हम बात करेंगे, एंड व्हेन वी जंप टू द मेन सॉफ्टवेयर, इनसाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर आई विल जस्ट 100% लेट यू नो अबाउट द ग्रेडियंट, ठीक है। शैडोज तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नो बडी इज। यार तुम ना बोर बना दोगे इस क्लास को, पता है। चलो क्वेश्चंस पूछो भाई। ग्रेडियंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेडियंट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट राइट नाउ, ठीक है। 100% वी आर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेडियंट, बट हमने अभी टेम्परेचर पढ़ा, टिंट पढ़ा, एक्सपोजर पढ़ा, कॉन्ट्रास्ट पढ़ा, हाईलाइट पढ़ा, शैडो पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि व्हाइट्स के बाद ना डिफरेंस आने लग जाएगा चीजों में। व्हाइट्स एंड ब्लैक्स मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आपको मैं दोबारा बताऊंगा ना, अभी व्हाइट्स एंड ब्लैक जो बताने वाला हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले व्हाइट्स एंड ब्लैक को मैं कुछ और बोल रहा था, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट कि ना शैडोज तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, एवरीबडी इज विद मी। आई थिंक अभी तक तो सब क्लियर है, बट इसमें हाँ मेरे हाँ हाँ। क्वेश्चन है कि या इट्स easier to retrieve details from underexposed images in yes, it comparison is with the. always. If you want to retrieve the underexposed image, not much underexposed image to be specific, एक स्टॉक तक, दो स्टॉक तक अगर आप अंडर एक्सपोज लेते हो ना, इट इज 100%, एंड इट इज मतलब मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स, माय टीचर्स एंड माय गुरुज हैव टॉट मी कि यू हैव टू टेक इट अंडर एक्सपोज फॉर अ सिंपल रीजन। जब भी whenever you go for clicking, you're doing birding, right? आपने क्लिक किया फोटो, if it is underexposed, you bring it to the software, your shadows are very nice. You Right. have to agree with this, your shadows are very nice, but आपके highlights जो होते हैं, जैसे clouds हो गए, या बैकग्राउंड में कुछ हाईलाइट्स हो गया, या बर्ड पे ही कुछ हाईलाइट हो गया, दैट Mhm. हाईलाइट इज वेरी वेरी अंडर, है ना। आप उन हाईलाइट्स को टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, इन चार चीजों से बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो अगर आपको स्लाइडर्स अच्छे से यूज करने आते हैं। बट सडनली इफ यू हैव टेकन, सैडली इफ यू हैव टेकन दिस फोटो, टिल हाउ मच एक्सटेंट यू विल रिकवर इट? ये तो पहले ही ग्रेन्स आने लग गए ना इसमें। Right. Right. लेट्स सी वी हैव टेकन इट दिस मच, ठीक है। हमने सिर्फ एक स्टॉक ऊपर लिया, ठीक है। स्टिल इट इज मच ग्रेनियर, स्टिल इट इज Mhm. मच ग्रेनियर इफ यू जूम। बट हमने इसको अंडर एक्सपोज लिया, तो हमने शैडोज को तो पहले ही डार्कर पार्ट, जो ग्रेन्स होते हैं ना वो डार्कर पार्ट में दिखते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सेइंग, यू जूम इट टू द डार्कर पार्ट एंड यू विल नो अंडरस्टैंड ग्रेन्स कहाँ पे आ रहे हैं, नॉइस कहाँ पे आ रही है। ग्रेन्स से रेफर कर रहा हूँ मैं नॉइस को, ठीक है। तो डार्कर पार्ट में बहुत नॉइस दिखती है। अब आपने पहले से ही डार्क ले लिया इन रॉ कैमरा, तो कैमरे को पहले ही पता है कि डार्कर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो वो नॉइस को वहीं से रिड्यूस करेगा, बिकॉज ISO ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसमें मैंने 3200 पे ISO लिया था, दिस वाज मॉल, और वहाँ पे MRT के अंदर हम जा रहे थे, तो दैट टाइम दिस फोटो वाज क्लिक्ड, एंड वो अंडर एक्सपोज ली गई थी। और मैं जनरली बहुत सारी फोटोज में अंडर एक्सपोज लेता हूँ अनटिल अनलेस आई एम यूजिंग प्रॉपर लाइट्स। तो Okay. आई थिंक दैट्स अ सिंपल रीजन फॉर इट, Is it है ना। easier to reduce some noise after in raw photos in comparison with the camera do in JPG, like with the हाँ noise reduction? जेपेग में ना, हाँ मैं बताता हूँ जेपेग में क्या होता है। जेपेग में नॉइज हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Hmm. जेपेग में मैं आपको बता, इफ सपोज इफ दिस इज अ जेपेग इमेज, दो इट इज अ रॉ, यहाँ पे आपको बहुत नॉइस दिख रही है, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, आप इसको डीहेज करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये हेज हेज मतलब वो हिल के जो नॉइस आई होगी वो करने की कोशिश करोगे कैमरा शेक की वजह से, वो आप थोड़ी सी दूर कर लोगे। बट when you start reducing using this noise reduction thing, तो वो इमेज को अजीब सा कर देगा। लाइक दिस स्किन इज वेरी स्मूथ, यू कैन सी, सब चला जाएगा, बट वो इमेज कार्टूनिश लगने लग जाएगी। इट वुड लुक लाइक It इट्स अ needs to be ग्राफिक। funny, हाँ जी, हाँ जी, वो right? ब्लर एड, या इट विल ऐड द ब्लर।
उसके लिए भी इन्होंने रिडक्शंस बनाए हैं, कलर नॉइज रिडक्शंस बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई है, वो हम बात करते रहेंगे अभी आगे। धीरे धीरे हम पूरा सॉफ्टवेयर को अच्छे से करेंगे, क्योंकि रॉ बहुत टाइम ले जाएगा। उसके बाद हम इन सॉफ्टवेयर जाएंगे ना, इट इज पीस ऑफ केक फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज द मास्टर। रॉ को अगर किसी ने मास्टर कर लिया ना, ही इज अ फोटोग्राफर, आई कैन टेल यू ही इज अ वेरी गुड एडिटर, क्योंकि एवरीथिंग कनेक्ट्स। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द लेफ्ट मेन्यू द हैंड आइकन, व्हाट इट डज। अच्छा, आपको इंटरेक्शन चाहिए क्या? तो हैंड आइकन क्या करता है, वो फोटो को मूव कराता है। कि इफ यू वांट टू मूव द फोटो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट डज इट दैट। तो इट इज नॉट द रेज हैंड थिंग, आपको ऐसे मूव करानी है ना, तो वो मूव कराता है फोटो को, ठीक है। दिस इज द हैंड टूल। वैसे वो स्पेस बार दबाने से भी आ जाता है, तो जनरली अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वेकॉम में देयर इज अ स्पेशल बटन फॉर दिस, हैंड टूल के लिए। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे माउस लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वहां पे वेकॉम में क्या होता है, यू जस्ट क्लिक वन बटन, इट इज ऑलरेडी हैंड। You click another button, there are 3 or 5 buttons to it. You can customize them towards your choice. I prefer to do it hand, और ये सारी चीजें, तो ये भी है, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। अब हम आगे बढ़ सकते हैं ब्लैक्स एंड व्हाइट पे, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं, हम आते हैं ब्लैक्स एंड व्हाइट्स पे। अभी मैंने आपको क्या बोला था 10 मिनट पहले, कि इट इज ऑन दी स्पेक्ट्रम 360 पे होता है। तो शैडोज जो होते हैं वो शैडोज होते हैं, और हाईलाइट्स जो होते हैं वो हाईलाइट्स होते हैं, व्हाइट की तरफ होते हैं और ब्लैक की तरफ शैडोज होते हैं। बट इसमें क्या है कि ना, स्पेक्ट्रम वो इमेजिनरी था। वट एवर आई हैव टोल्ड ऊपर शैडोज और हाईलाइट में, वो 100% इमेजिनरी स्पेक्ट्रम था, टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ऑपोजिट रहते हैं हाईलाइट्स एंड शैडोज में, ठीक है। आई एम कॉन्ट्रोडिक्टिंग माई सेल्फ। बट यहाँ पे अगर हम ब्लैक्स एंड व्हाइट पे आते हैं, तो इस फोटो में ब्लैक भी होगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली है, और इस फोटो में व्हाइट भी होगा, जो कि ऑब्वियसली विजिबल है, ठीक है। इस ब्लैक एंड व्हाइट में जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की बात ही नहीं करते इसमें, ठीक है। इस ब्लैक एंड व्हाइट में दे आर जस्ट एडजेसेंट। आप इसमें से अगर एक भी यूज करोगे ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हेन यू यूज द व्हाइट्स, इट विल मेक, हर कलर में व्हाइट है, रेड में भी कहीं ना कहीं व्हाइट है, अकॉर्डिंग टू दिस डिजिटल आर्ट, नॉट द प्राइमरी कलर्स। तो हर चीज में व्हाइट है, रेड में भी कुछ व्हाइट है, इसमें भी कुछ व्हाइट, ब्लैक पे भी कुछ व्हाइट है, ब्लैक में ब्लैक तो है ही है, ठीक है। अब व्हाइट्स को छेड़ोगे ना, तो जनरली दिस ब्लैक एंड व्हाइट विल कॉन्ट्राडिक्ट विद योर एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो जब आप यहाँ पे ब्लैक्स एंड व्हाइट सेट करोगे, लुक एट द हिस्टोग्राम व्हेन आई एम डूइंग दिस, जब यहाँ पे आप ब्लैक्स एंड व्हाइट को एडिट करोगे, तो वो हिस्टोग्राम में एक्सपोजर पैनल को बहुत चेंज करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव डन हेयर टू द एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट, द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ विल कॉन्ट्राडिक्ट योर प्रीवियस सेटिंग्स। तो वो आपकी पुरानी सेटिंग्स को ही खराब बोलेगा, ठीक है। लेट्स डू दिस, हम व्हाइट्स की तरफ जाते हैं। लुक एट द एक्सपोजर पैनल, बस आप यहाँ पे देखना, ये एक्सपैंड करेगा, और ये हेवीली एक्सपैंड करेगा, ठीक है। जरा से मूव पे भी एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब मैं ब्लैक्स को करता हूँ, मैं ब्लैक्स को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो उस तरफ को एक्सपैंड कर रहा है। तो अब इसमें से एक को मूव करोगे ना, आप अपना अपना फोटोग्राफी का टेस्ट, वो कलर टोनिंग पहचान लो पहले, व्हाट कलर टोनिंग आर यू मूविंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अभी ब्लैक्स की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने हाईलाइट थोड़ा खराब कर दिया, शायद एक्सपोजर थोड़ा खराब किया था, या आई हैव रीएडजस्टेड इट। अब मैं थोड़ा ब्लैक की तरफ जाता हूँ, तो आई एम नॉट टचिंग वाइट्स, आई एम ओनली टचिंग ब्लैक। बट ये सब्जेक्टिव है सर, मतलब इट इज नॉट कि मेरे को इस फोटो में ये करना चाहिए था, एडिटिंग इज टू सब्जेक्टिव। मैं ब्लैक्स की तरफ जा रहा हूँ, और ब्लैक्स पे भी डार्क पार्ट, मैं राइट की तरफ जा सकता था, बट वो फिर वाइटिश हो जाएगा थोड़ा। ये ब्लैक्स एंड व्हाइट एक ही स्टाइलस में हैं, तो हमें दो दो अलग क्यों यूज करने, दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है। हम थोड़े ब्लैक की तरफ जाते हैं, बर्निंग देखते हैं। दिस कलर वाज बर्निंग हियर, इफ यू हैव सीन। अब ध्यान से देखोगे तो पीक्स, ब्लू का पीक है ना, दिस कलर्स आर बर्निंग, तो हमें बर्निंग बचानी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बर्निंग, बट फिर भी हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा तो जाना है ब्लैक टोन पे, हम थोड़ा सा ब्लैक टोन पे आ गए, ठीक है, ट्राइंग टू मेक इट मोर ब्लैक। अब ये तो हो गई नॉर्मल चीजें सारी एडिटिंग की, ठीक है। ये बेसिक बेसिक वो है कलरिंग का, मतलब कलर करेक्शंस करने का। तो व्हेन एनीबॉडी सेज कि आप अपनी फोटो का कलर करेक्शन कर लो,
तो ही मीन्स टू से अब ये 8-9 चीजें ठीक कर लो अपनी फोटो की, ठीक है। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन कम्स इन कलर करेक्शन, बट वो उनको अलग डिवीजन इसलिए दिया है, आई लेट यू नो किस लिए दिया है। इधर लेके आया उसने फोटो को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया, उसने सिर्फ सैचुरेशन कम किया। पुराने सॉफ्टवेयर में क्या होता था, अगर आप इधर लेके आते हो ना टूवर्ड्स द लेफ्ट, वो पूरा ही उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता था, ठीक है। और आप थोड़ा राइट की तरफ लेके आए तो व्हाट इट डज इट कि वो कलर्स को और बर्न कर देता है, थोड़ा बर्नी लुक दे देता है, ठीक है, वो ये सारी चीजें कर देता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग सैचुरेशन, तो सैचुरेशन इज, इसने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे अननेसेसरली बर्न कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। अब हम इस इमेज को कर्व्स में आपको वहां पे समझाता हूँ मेन सॉफ्टवेयर में, देन वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रेडियंट्स, ठीक है। अच्छा, HSL के बारे में समझ लेते हैं, उधर जाने से पहले ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले इसको यहाँ से डन कर देता हूँ एंड दिस इमेज विल गो एंड सेव देयर। मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकता था ऑब्वियसली, बट मैं आपको अब ये दूसरी इमेज में बताऊंगा, इस इमेज में नहीं बताऊंगा। दिस दिस इमेज, देयर इज वन मोर इमेज व्हिच इज ऑलवेज अंडर एक्सपोज्ड, आई क्लिक, ठीक है। ओके, एक और देखते हैं। दिस इमेज जो मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी है, वो आपको मैं बताऊंगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप और एडिटिंग क्यों जरूरी है। दिस इज वन मोर अंडर एक्सपोज्ड इमेज, आई प्रेफर टू क्लिक इट अंडर एक्सपोज्ड ओनली, ठीक है। अच्छा, एक और इमेज देखते हैं। ये जोहान्सबर्ग की फोटो है, दिस इज ऑल्सो अंडर एक्सपोज्ड, ठीक है। आप देखोगे तो द सब्जेक्ट इज वेरी लिट, द बुक रीडर इज वेरी मच लिट, and the girl and her teddy little bit underexposed, but हाँ values अच्छी हैं, काफी अच्छी values हैं। This is another photo which is underexposed, तो ये सारी underexposed हैं। अच्छा, ये है देखो XMP फाइल, हमने इमेज को एडिट किया ना तो ये XMP सेव हो जाती है उसकी। हम आई थिंक वो बहुत एडवांस हो जाएगा, आप XMP में भी चेंजेस कर सकते हो काफ़ी, विल नॉट टॉक अबाउट इट अभी। तो इसमें से हम कोई फोटो लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं, आई थिंक ये वाली फोटो लेते हैं, ठीक है। तो ये निकॉन से क्लिक की गई थी, हम इसको क्लिक करते हैं, वी ओपन इट, सेम चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ पे माइनर मेजर एडजस्टमेंट करते हो, कर्व्स को एडजस्ट करते हो, ठीक है। और कर्व्स में मैं बताऊंगा अभी आपको, और यहाँ से आप ओपन इमेज को करते हो तो आप आ जाते हो मेन सॉफ्टवेयर में। दिस इज योर मेन सॉफ्टवेयर नाउ, दैट वाज जस्ट अ स्टोरी, अभी आया मेन सॉफ्टवेयर। अब इसमें टूल्स होते हैं, ठीक है। और फोटो एडिटिंग में क्या क्या कब कब यूज होता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने कैमरा रॉ मिस कर दिया, सपोज आपने कैमरा रॉ को मिस कर दिया, ठीक है। अब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू फिल्टर एंड देन वी कैन गो टू कैमरा रॉ। यहाँ पे कैंसिल करके मैं आपको बताता हूँ, वी कैन गो टू फिल्टर एंड देन वी कैन गो टू कैमरा रॉ फिल्टर। तो हम दोबारा से वहीं पे आ जाएंगे, बट दिस टाइम दिस इमेज इज नॉट एज मच कैपेबल, क्योंकि हम इसको रेस्टराइज कर चुके हैं, ठीक है। वो दो रॉ इज ऑल्सो अ रेस्टराइज पार्ट, बट हाँ हम कर चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर लेता हूँ कि मैं इसमें रॉ में ही करना पसंद करता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर लेता हूँ, आई थिंक 1.2 इज ओके। मैं कंट्रास्ट को भी सेट करता हूँ, टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड आई एम मूविंग दिस टाइम। मैं हाईलाइट्स को भी सेट करता हूँ, आई एम स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड। थोड़ा सा शैडोज को, तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द शैडो डोंट लुक एट द सब्जेक्ट राइट नाउ, बिकॉज उसके फेस पे ना ज्यादा है नहीं, इसकी नेक पे है थोड़ा सा, इसके हैंड पे है थोड़ा सा जहाँ पे टैटू बना हुआ है, एंड टुवर्ड्स द बैकग्राउंड अगर आप देखोगे ट्रीज के शैडोज हैं। तो आप जरा इन जगहों पे फोकस करने की कोशिश करना है इस टाइम। मैं ओवर करता हूँ, इतना हो जाता है, मैं अंडर लाता हूँ, ब्लू हो जाती है, ठीक है, कलर बर्न हो जाते हैं। आई स्टिल मूव टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड, ठीक है। वाइट्स में से आई थिंक मैं ब्राइटर जा रहा हूँ, तो मैं वाइट्स को ही चुनूंगा, ब्लैक्स को मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है। एंड स्टिल गोइंग टूवर्ड्स द वाइटर साइड। मेरे को इसमें टेक्सचर और हेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस फोटो इज ऑलरेडी ब्यूटीफुली क्लिक्ड, तो मेरे को ज़्यादा चीज़ों की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अच्छा, आप कर्व एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बट मैं कर्व अंदर बताने वाला हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो गई, आप एक फोटो पे आ गए एंड यू हैव ऑलरेडी डन दिस फोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से, ठीक है, एक्सपोजर वगैरह सेट कर लिया। अब कुछ बात करते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई ना,
अब बेसिक चीज बताओ, फोटो एडिटिंग करनी क्यों है? ये तो मैं कैमरे में अपने आप को मास्टर करके ही ठीक कर लूंगा। वाई आई नीड दिस फोटो एडिटिंग क्लास, वाई आई नीड दिस वेबिनार? तो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू क्लिक, एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू क्लिकिंग दी फोटो। डोंट टेक इट फिजिक्स वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मत ले जाना, बट येस, wind also affect your camera, dust also affects your camera, light also affects your camera, everything एटमॉस्फेयर में जो भी है वो आपके कैमरा को इफेक्ट करता है। तो ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये टूल पैनल है, ठीक है, इसमें सारे टूल्स हैं। तो फॉर इंस्टेंस मुझे ना ये वाइट स्पॉट हटाना है, आई थिंक एवरीबडी कैन सी दिस वाइट स्पॉट। तो इसको हटाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश ले सकता हूँ, आई कैन क्लिक वंस, वंस, इधर भी वंस, एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, ये ब्लेमिश भी दूर कर दिए, इट्स डन, ठीक है, इजी पीजी, ठीक है। अब मैं वापस लेके आता हूँ, ठीक है, एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू डू इट अनदर वे। तो एक और तरीका है, अब ऐसे कर लो, है ना, विच इज वेरी प्रिमिटिव, और आपको दबाना क्या है, शिफ्ट और डिलीट दबाना है, कंटेंट अवेयर हो जाएगा। बट ये आपके यहाँ पे इट विल मेक लिटिल बिट ब्लरी, वो एक स्पॉट छोड़ जाएगा, विच इज नॉट गुड, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। एडिटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन दिस यू नो यूजलेस हेयर्स जो नहीं होने चाहिए किसी फोटो में, जो आप उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दे सकते थे, आप वो कर सकते हो क्लीन। सी आई हैव क्लीनड इट, ठीक है। आई एम डूइंग इट रफली, बट आप बहुत प्यार से कर सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ब्लरी एजेस आ रहे हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और ये सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हम एडवांस क्लास में बात करेंगे। 100% वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट व्हेन वी डू एडवांस लेक्चर, ठीक है। मैंने थोड़ी सी कैप साफ कर दी, ये ब्लू पार्ट आ रहा था ये साफ कर दिया, आई क्लीन दिस ऑल्सो, ठीक है। ये तो स्पॉट हीलिंग ब्रश ने हमारा काम कर दिया, ये ब्लेमिशेस थोड़े से दूर कर दिए, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब और क्या क्या है, ये हमारे पास है रेक्टेंगल टूल है हमारे पास। इस रेक्टेंगल टूल पे अगर लॉन्ग क्लिक करता हूँ, एलिप्टिकल आ जाता है, सिंगल रो मार्की टूल आ जाता है, और कॉलम मार्की टूल आ जाता है, ठीक है। हम वो कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि हाउ आई डू इट एंड व्हाई आई डू इट, ठीक है। मैं मैं जनरली रूलर खोलता हूँ, आई ओपन द रूलर, आई मार्क दीज लाइंस, ठीक है। मैं ये लाइन मार्क कर लेता हूँ। सो आई लाइन आई पे हो गई, नोज का टिप लाइन टिप पे हो, नोज टिप पे हो गया, एंड चिन लाइन चिन पे हो गई। व्हेन आई एम रीटचिंग द एडवांस लेवल पे, तो मैं आई प्रेफर टू ओपन इट लाइक दिस, सो दैट आई हैव नेवर चेंज द प्रोपोर्शंस। कभी भी फोटो के मैंने प्रोपोर्शन चेंज कर दिए अगर, तो मेरे को तो नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं रॉ नहीं चेक करने वाला कभी। बट यू कैन ऑलवेज गो लाइक दिस एंड देन यू कैन कम टू हिस्ट्री, आपकी फोटो ऐसी थी, इट बिकेम लाइक दिस, ठीक है। अगर आपने परफेक्ट कंट्रोल्स हाथ में लिए तो आप फ्रॉम दिस डार्कर लुकिंग फोटो यू कैन कन्वर्ट इट टू दिस ब्यूटीफुल लुकिंग फोटो। अभी भी और ब्यूटीफुल हो गई, देखो कैसे। अब देखो, मैं जनरली ऐसे प्रेफर करता हूँ, बट आप लोगों को बहुत हौच पौच लगेगा, तो लेट मी रिमूव दी लाइंस। इसका एक शॉर्टकट होता है, इफ़ यू यूज दी वेकॉम टैबलेट्स, उसमें इजीली कस्टमाइजेबल शॉर्टकट आ जाता है, तो आप एक क्लिक दबाओगे सारे लाइंस रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो दो तरह की एडिटिंग होती है। अब कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है और डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है, ठीक है। सो व्हेन आई प्रेस कमांड जे और कंट्रोल जे ऑन योर पीसी, तो एक डबल लेयर बन गई, ये एक और लेयर बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब इस लेयर पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस लेयर, आई एम नॉट वर्किंग ऑन द बैकग्राउंड। इसको मैंने लॉक, यहाँ से आप क्लिक करते हो आप लॉक खोल लेते हो, बट वी डोंट नीड टू डू इट, हम इसको हाइड ही कर देंगे जब हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक लेयर बना ली। अब कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग और डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग में आपको डिफरेंस बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करते हैं पहले, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करी हमने हमने जैसे इसमें अगर हमने एडजस्टमेंट करनी है, मुझे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, या तो मैंने वो रॉ पे करना है, फिल्टर जाके कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है, या ओल्ड प्रिमिटिव वे जिन कैमरास को सपोर्ट नहीं कर रहा है रॉ, मैं उस पे जाके कर सकता हूँ। तो यस, वी कैन इंक्रीज दी ब्राइटनेस हेयर, मैंने इतनी ब्राइटनेस इंक्रीज कर ली है। अब और कंट्रास्ट मैंने इतना कम कर दिया, और या कंट्रास्ट मैंने और बढ़ा दिया, तो आई मेड दिस फोटो अगली, ठीक है। अब मैंने ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी फोटो हो गई। अब इफ आई वांट टू गो बैक, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यार ये तो मैंने ओवर कर दिया, गलती से ओवर
ओवर कर दी है फोटो मैंने, अब मैं कैसे इसको साफ करूं, या मैं इसको पुरानी कंडीशन में कैसे लाऊं, ऐसे कैसे बनाऊं इसको दोबारा, ऐसे कर दिया मैंने इसको। तो मैं फिर इमेज पे जाऊंगा, एडजस्टमेंट पे जाऊंगा, ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे जाऊंगा। इस टाइम मैंने पिछली बार उधर मूव किया था, अब मैं इधर मूव करूंगा, ठीक है, इधर मूव करूंगा और कंट्रास्ट को भी इधर मूव करूंगा। ये फोटो समहाउ वैसी आ जाएगी, ठीक है, जैसी हमने छोड़ी थी। बट पता है इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये बर्न होने लग जाएगी जगह जगह से, ठीक है, ये जगह जगह से बर्न होने लग जाएगी फोटो, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करी, हमने एक लेयर बनाई और उसी लेयर पे हम काम करते रहे, ठीक है। वेयर एज कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या होती है, अगर मुझे ब्राइटनेस एंड कंट्रोल का वो करना था तो मैं एक नया लेयर बनाऊंगा ब्राइटनेस एंड कंट्रोल का, और इस पैनल पे, द पैनल ऑन योर राइट हैंड साइड, हम उस पैनल पे जाएंगे और उस पैनल पे हम एडिटिंग करेंगे। तो एंटायर थ्रू कहीं पे भी अगर मैं एक और लेयर बना देता हूँ इसकी, ठीक है, एक और लेयर बना देता हूँ इसके ऊपर, एक और लेयर बना देता हूँ, बट वेन एवर आई वॉन्ट टू एडिट, या सॉरी, सो बट वेन एवर आई वॉन्ट टू एडिट, तो मेरे को इस लेयर पे एडिट नहीं करना, जैसे कि हम उसमें जा रहे थे और इस लेयर पे एडिट कर रहे थे, नहीं, हमें इस लेयर पे एडिट नहीं करना, हमें सिर्फ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को अलग से एडिट करना है, ठीक है, हमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अलग से एडिट करना है। बट हम ये वहाँ पे रॉ पे कर चुके, तो हमें आई थिंक करने की जरूरत है नहीं अभी, हम लास्ट में जब ग्लोबल टोनिंग लगाएंगे फोटो के ऊपर तब करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी इफ द क्लास इज गोइंग लेंदी, हम फोटो खत्म करके ही उठेंगे, ठीक है, हम पूरा सेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। Very interesting. And या थैंक यू। question, या uh, the process that we are following right now, is it like we can use it throughout any photo, regardless of it being a portrait or a landscape or a या product? या हाइलाइट्स एंड कंट्रास्ट, दिस एक्सपोजर थिंग हम किसी भी फोटो पे कर सकते हैं। Okay. कलर करेक्शन तो हर फोटो में इंपॉर्टेंट होता है, राइट, अनटिल So, अनलेस वो ब्लैक एंड व्हाइट टोन्स पे है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में फिर देयर आर 57 शेड्स होते हैं ग्रे के, जो कि right. मतलब मूवी पे मत जाओ, 56 शेड्स ऑफ ग्रे, 60 शेड्स ऑफ ग्रे, एक्चुअली डोंट गो टू द मूवी, देयर आर ओनली 57 शेड्स ऑफ ग्रे। अब Oh, हर ग्रे का एक डिफरेंट कलर है, डिफरेंट टोन है, ठीक है। तो अब हमें ग्रे को अगर एडिट करना है तो फिर हम एक्सपोजर को ध्यान से यूज करते हैं, हाईलाइट को हम बहुत ध्यान से यूज करते हैं, क्योंकि हमें सारे शेड्स को समझना पड़ता है, ठीक है। mhm. बट हाँ, द टेक्निक आई एम शोइंग हेयर इज फॉर एनी genre of photography, any genre of photography, you don't have, regardless, it is portrait, it is anything, you have to use this technique, you have to use। Okay. लैंडस्केप में भी बहुत अच्छे से जाती है टेक्निक। तो वी वर ऑन अ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग, राइट। तो अभी तक हम डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर रहे थे, अब हम कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं अपने पैनल पे और हम इसमें जाके ब्राइटनेस की लेयर हमने क्रिएट करी और हमें पता लग गया कि हम यहीं पे सब एडिट कर सकते हैं। एंड वेन एवर वी वॉन्ट वी ओनली हैव टू एडजस्ट दिस लेयर, दिस आई लेयर को हमने एडजस्ट करना है, अपर लेयर को, इस मेन फोटो को कभी टच ही नहीं करना। सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग वन पार्ट। अभी कई लोगों को क्या होता है कि ना, दे आर वेरी बैड विद लेयर्स, दे डोंट वांट टू मेक लेयर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव सीन मेनी पीपल हु डोंट वांट टू मेक लेयर्स। तो हम इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, तो डबल टैप ऑन योर मैक इफ यू आर यूजिंग, और इसमें हम एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे बना दिया, वी कन्वर्टेड इट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हमेशा डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग नहीं होगी, अब हमेशा कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग होगी। अब इस लेयर पे आप जो भी करोगे वो कंस्ट्रक्टिव होगा। सी हाउ, हम पुराने तरीके से कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ही कर रहे हैं, ठीक है, बट ये कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। हमने ब्राइटनेस कंट्रास्ट की लेयर ऐड करी, ठीक है, हमने इसको ओवर एक्सपोज कर दिया, ओवर कंट्रास्ट कर दिया, अब हमने इसको लेयर कर, अब देखो ये स्मार्ट फिल्टर बन के आया यहाँ पे। होप यू कैन सी दी डिफरेंस, राइट गाइस, सबको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब ये स्मार्ट फिल्टर बन के आया। अब मैं ब्राइटनेस यहीं से बंद कर सकता हूँ, ठीक है, एडजस्ट करनी है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, मैं स्वॉचेस खुल जाएंगे, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इजी, लाइक फोटोशॉप इज वेरी वेरी इजी, यू डोंट हैव टू जस्ट वरी अबाउट इट, और बहुत इजी है। अब वही कर्व्स में आता है, तो मैं आपको सबसे पहले कर्व्स बताता हूँ कि कर्व्स होते क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे मेन सॉफ्टवेयर में मिस किया था ना, रॉ में मिस किया था, तो मैं कर्व्स यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। कर्व्स क्या होते हैं? सो देयर इज अ क्लासिक कर्व विच इज नोन एज एस कर्व, ठीक है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट फोटोग्राफ्स उठा के देखिए। आज आप घर पे जाए, अभी आप जो घर पे ही हो, अब तो लॉकडाउन है, एवरीबडी इज एट होम, आफ्टर दिस वेबिनार व्हाट यू डू इज you go to the Google, type world's best photographs, download them, open it to Photoshop और उनका कर्व चेक करना। मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स आर ऑन एस कर्व, क्लासिक एस कर्व। तो ये हमारे शैडोज हैं,
ठीक है, ये हमारे शैडोज हैं, ये हमारे शैडोज हैं। सी, जो डार्कर है ना, ये हमारे शैडोज हैं, ऊपर हमारे हाइलाइट्स हैं, ये हमारे हाइलाइट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्लासिक एस कर्व बनाने की कोशिश करते हैं लुकिंग एट द इमेज। अब हमारे दिमाग में पहले से है कि हम एस कर्व बना रहे हैं। ये ब्राइट हो गया, हम ऊपर गए, हमने देखा, 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 नहीं, नहीं, ओके, ये ओवर हो गया इतना। ठीक है, अब फिर से हम इधर गए, इतना ले आए, अगेन वी ट्राई टू सेट दी शैडोज, ओपेसिटी हमने चेक करी, ओपेसिटी वहां से देखो हमने एक्सपोजर ज्यादा किया, वो ज्यादा हो गया। अब ये क्लासिक एस कर्व बन गया। कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग थी, मैं कभी भी आके चेंज कर सकता हूँ इसको, जब चाहूँ मैं तब चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक चीज हो गई कर्व्स के बारे में। सो कर्व्स में हमेशा याद रखना, हिस्टोग्राम हमेशा देखो, कर्व मीटर हमेशा देखो, एंड दिस थिंग इज shadows the darker part, this thing is the lighter part। ठीक है, अब इसमें भी बहुत कस्टमाइजेशन होते हैं। आप सिर्फ रेड कलर को ही करना चाहते हो एडिट, ठीक है, आप रेड को करो, सिर्फ रेड टोन आएगा, जिसको स्प्लिट टोनिंग कहते हैं। स्प्लिट टोनिंग की भी हम बात करेंगे अभी। स्प्लिट टोनिंग आई वांट बिकॉज इट इज ट्रेंडी। आप इंस्टाग्राम का फिल्टर खोलो, एवरी फिल्टर इज, यू नो, एवरीबडी इज यूजिंग दैट ऑरेंज एंड टील फिल्टर, और ये ब्लू फिल्टर, हम उसकी बात करेंगे, वो बहुत ट्रेंडी है, तो ट्रेंडी चीज बतानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हम इस पे करते हैं। फिर हमको अगर ब्लू करना है तो हम ब्लू कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे, ब्लू करना है तो हम ब्लू कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, वी डोंट नीड दिस। हम लेवल्स पे आते हैं। सो हमने कंट्रोल एल, कमांड एल दबाया, कंट्रोल एल ऑन योर पीसी एंड कमांड एल ऑन योर मैक, या फिर हमने लेवल्स यहाँ से ले लिए, ऑल बोथ सेम थिंग। ठीक है, बट अगर आप टैबलेट यूजर हो जाते हो ना, तो आप माउस ऐसे यूज करना बंद कर देते हो। आप हमेशा कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाते हो, या फिर अपने कीबोर्ड सेट कर लेते हो आप शॉर्टकट्स अपने टैबलेट पे। तो आई प्रेफर आप एक डेमो तो 100% लो वेकॉम के टैबलेट का। ठीक है, अब ये देखिए, हम लेवल्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नाउ माइट हैव अंडरस्टूड कि फोटोशॉप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, बट वो काम एक ही करते हैं। तो देयर इज 100 ways टू डू वन टाइप ऑफ एडिटिंग। ठीक है, मैं इसमें लेवल्स एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़े से। ठीक है, लेकिन हर हर टूल का ना अलग काम है, तो एवरी टूल इज नॉट सेम। मैंने लेवल एडजस्ट करे। अब मैंने डिस्ट्रक्टिव किया था। ठीक है, अभी इसको मैं कमांड सी करता हूँ, और मैं इसको डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव करता हूँ। ठीक है, अब मेरे लेवल्स यहाँ पे आ गए, आई ट्राई टू डू द सेम थिंग। ठीक है, और मैंने सेम चीजें यहाँ पे वापस कर दी। तो आई हैव वेरी इजीली एडजस्टेड इट। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो, मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ। जनरली बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ फोटोशॉप, यू हैव पावर ऑफ लाइट रूम, आप एडिटिंग करना जानते हो। ठीक है, अब आप इसका फेस देखो, इसकी फेस की टोनिंग अच्छी नहीं है। द कलर टोनिंग ऑफ अ फेस इज नॉट दैट मच गुड। इधर बहुत ब्राइट है, इधर बहुत डार्क है। देन हर टैटू इज नॉट, मतलब इंटायरली गुड, नाइसली विजिबल, बिकॉज ये एक ट्री के शेड के नीचे लिया गया था, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे डिफ्यूजर नहीं था। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स एंड डिफ्यूजर्स भी यूज होते हैं फोटोग्राफी में सन को दुकाने के लिए। तो वो नहीं था, तो हमने इसको शेड में लिया था। बट लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो हम इसकी एक और लेयर बनाते हैं कमांड से, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम एक और लेयर बनाते हैं। और हम उसमें उस लेयर में क्या करते हैं कि हम टैटू को, सिर्फ टैटू की उसको देखेंगे, सिर्फ हम टैटू को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी थोड़ा लाइट पार्ट है, बट ये थोड़ा डार्कर पार्ट है। तो हम सिर्फ टैटू, इसकी बेली को, इसके बेल्ट को, इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब हम इस पे एडिट करते हैं। हमने थोड़ा सा मिड टोन बढ़ाया, थोड़ा सा शेडो रिकवर किया। डोंट वरी, फेस अगर जा रहा है, डल हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ। सो आपको एक और चीज बता दो, रुको। हमने लेवल्स खोले। अब आप ऑप्शन की जब दबाओगे ना, और शैडो स्लाइडर को उधर लेके आओगे, तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो आपके लिए पता है व्हाट इज परफेक्ट थिंग? आई शो यू। परफेक्ट आपके लिए क्या है? जब आपको बर्न दिखने लग जाए ना, वहां पे स्टॉप हो जाना। देखो, अभी मेरे को ऊपर बर्न दिख रहा है, यू सी रेड पार्ट ओवर हेयर, दैट इज बर्न्ड ऑलरेडी। देखो,
बट क्या ये इंपॉर्टेंट और परमानेंट पार्ट है फोटो का? देखो क्या है वो, ये मोर का पंख, ये पंख टाइप की चीज है, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दी। तो आप और बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ये नहीं है इंपॉर्टेंट ना हमारे लिए। अगर ये थोड़ा अंडर एक्सपोज हो भी जाएगा, हमें क्या प्रॉब्लम है? हर फेस, एंटायर बॉडी, हर हैंड, दिस थिंग इज आई थिंक प्रोमिनेंट। और जो बैकग्राउंड, क्योंकि नॉइसी बैकग्राउंड बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हम बैकग्राउंड को देखेंगे। तो अभी हम करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, अब यहाँ से मुझे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसमें हेयर्स इंक्लूड हो रहे हैं, नेक इंक्लूड हो रही है, और थोड़े से अपर चेस्ट इंक्लूड हो रही है। तो हम ये थोड़ा सा यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है? ये हमारे लिए परफेक्ट है। अब इधर आते हैं, ये वाइट्स हो जाएंगे। तो द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, ये ऑलरेडी इसके हेयर्स और ये सारी चीजें बर्न हो रही हैं, बट हम देखेंगे हेयर्स के जब हम, हाँ अब देखो हम इसकी नोज को बर्न कर रहे हैं यहाँ पे। इफ यू विल सी ओवर हेयर, वी आर जस्ट बर्निंग हर नोज। अभी नहीं, बट हाँ करेंगे। So when you press space bar, you have a hand tool. I think this Okay, is a मैं, very good idea and very good advice. yeah, thank you so much. Yeah, so this, अब इसकी देखो नोज बर्न करनी शुरू कर दी हमने, विच वी डोंट वांट, राइट? तो हम, बट सी, अभी क्योंकि हम फोटो को काफी एडिट कर चुके हैं, तो उसकी नोज बर्न हो रही है, बट इट्स जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। वरना अगर हम इतनी नोज बर्न रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मी, दी लेवल्स ऑफ दिस फोटो, ब्लैक्स में थोड़ी कमी थी, हमने कंप्लीट कर दी। व्हाइट्स में थोड़ी कमी है, वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? एंड दिस इज दी परफेक्ट थिंग, ठीक है? ये हमारी एक फोटो वेल बैलेंस्ड हो गई, वेल इमेज्ड हो गई, सब कुछ इसमें सही है, ठीक है? ये सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने वो किया था ना, लेकिन अब हमने वो किया, वहां पे लेवल बना लिए, लेकिन हम तो यहाँ पे टैटू को ब्राइट कर रहे थे, तो हम टैटू को लेके आते हैं, ठीक है? हमने टैटू ब्राइट किया, यहाँ पे ओके किया। अब हम आते हैं अपने इरेजर टूल पे, ठीक है? बिकॉज वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ एडिटिंग, तो हम एडिट तो करेंगे, और इस लेयर को हम नीचे ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारी डार्कर लेयर ऊपर आ गई। अब यहाँ पे हम ब्रश लेते हैं और इसकी ओपासिटी को करते हैं थोड़ा सा कम, और इसके फ्लो को भी करते हैं थोड़ा सा कम, ठीक है? अब राइट क्लिक करके ब्रश देखते हैं हमने कौन सा इरेजर कौन सा लिया हुआ है, ठीक है? हम इरेजर की हार्डनेस को भी कम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और साइज तो हम ब्रैकेट से कर सकते हैं या फिर अपने स्टाइलस से कर सकते हैं, ठीक है? अब ओके, वी आर ऑन द रॉन्ग लेयर, वेरी सॉरी, हमें अपर लेयर पे आना पड़ेगा पेंट करने के लिए। सो वी, अब हम डिस्ट्रक्टिव पेंटिंग कर रहे हैं। होप यू कैन सी द डिफरेंस। ये ब्राइट होता जाएगा, है ना? दिस विल कीप ऑन गेटिंग ब्राइट, दिस विल गेट मोर ब्राइटर, है ना? और ये जो अंडर एक्सपोज पार्ट था, ये हम इसको और इसकी शैडोज खोल सकते हैं अपने हिसाब से। ये कैमरा रॉ में भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, इसलिए आई नेवर टोल्ड यू। हम इसके फेस को थोड़े से कॉन्ट्यूज दे सकते हैं, ठीक है? हम इसके यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं इसको, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच, नॉट टू मच ऑफ इट, बस लिटिल बिट, ठीक है? अच्छा, ये हो गई एक चीज। तो आई थिंक बेसिक में ना हम इतनी चीजें कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं बेसिक्स में, ठीक है? अब आते हैं हम स्प्लिट टोनिंग पे, जो Should कि we, बहुत ट्रेंडी है आजकल। I'm या sorry, I'm interrupting you. या Should we use a mask either of erasing? हाँ हाँ, मास्क, वो तो कंस्ट्रक्टिव एडिटिंग आ गया ना, वी शुड ऑलवेज यूज मास्क। मतलब Okay. मैं तो भी, वी शुड ऑलवेज यूज मास्क, मास्क पे, और फिर उसको ब्लैक पेंट कर दीजिए, व्हाइट पेंट कर दीजिए, वट एवर यू आर डूइंग, यू डू इट लाइक दैट। इन दैट केस यू हैव टू पेंट, यू डोंट, यू कैन नॉट Mhm. यूज इरेजर, तो आपको ब्रश पे आना पड़ेगा। बट मास्क यूज कर सकते हो, आई प्रेफरेबली यूज दिस थिंग, क्योंकि मेरे को पता नहीं, लेवल्स बढ़ा के ऐसे काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक एंटायर लेयर को खत्म कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अनदर लेयर एज एन ऑप्शन। इट्स Right. ऑलवेज सब्जेक्टिव, आप कैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर लो, ठीक है? इसको हार्ड ब्रश, इसका हार्डनेस कम कर लो, एंड देन यू स्टार्ट पेंटिंग इट, इट इज द सेम थिंग मास्क बना के।
Right, right. Yeah, so we can do like this also, which is a very good thing, क्योंकि आपके पास एडजस्ट करने के लिए हमेशा होगा. बट या ये Hmm. स्किपिंग पार्ट है, हम फर्स्ट में इनिशियली कर लेते हैं, तो आई थिंक वी नेवर हैव टू कम बैक टू दिस. बट यस, इट इज ऑलवेज अ नाइस ऑप्शन टू डू, ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव. अब आते हैं हम कलर टोनिंग के ऊपर. तो वीडियो एडिटिंग में सबने सुने होंगे, देयर आर लट्स. लट्स होते हैं, लट्स के बाद एडिटिंग होती है, लट्स के बाद ये चीज़ होती है, लट्स के बाद वो चीज़ होती है. लट्स ना हमारे फोटोशॉप में भी होते हैं, एंड देयर आर ऑलवेज लट्स के बिना कलर सिस्टम चलता ही नहीं है. दे यू कैन नॉट यूज. ठीक है, तो अब ये 3D लट्स पे आ जाते हैं. सो हाउ हाउ आई वेंट, मैं नीचे पैनल पे आया एंड मैंने कलर लुकअप खोला, और कलर लुकअप की एक लेयर बन गई, जो कि 2 बन गई. अब मैंने एक डिलीट कर दी. ठीक है, अब यहाँ पे लट्स पे आते हैं. तो these are all the LUTs what we have. अब ये देखो, ये एक डिफरेंट टोन बन गया है ना. ये देखो, बिफोर आफ्टर ये देखिए आप, है ना. येलोश हट गए, वो चला गया. तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ टोनिंग इज वेरी मच यूज दीज डेज. आप इंस्टाग्राम फोटोज देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, पीपल आर यूजिंग दिस. ठीक है, ये एक स्प्लिट टोनिंग है. फिर मैं एक और आपको स्प्लिट टोनिंग का तरीका बताता हूँ. आई थिंक मैंने वैसे भी बहुत लेंदी कर दिया, बट या ये एक स्प्लिट टोनिंग है. ठीक है, इसको ग्लोबल कलरिंग कहते हैं, कि आप एक ग्लोबल फिल्टर लगा देते हो अपनी फोटोज पे. तो आपने जो भी मैनिपुलेशन करी थी ना, या जो भी आपने कलर यहाँ पे हाथ पे छेड़ा था, वो सब पे एक फिल्टर लग जाता है. तो उससे आप पता नहीं लगता कि वो लाइक ये आपने एडिट किया है या ओवर एडिट किया है. वो ओवर एडिट की गुंजाइश हट जाती है हर तरीके से. ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के फिल्टर हैं. आप इन फिल्टर्स को यू कैन ऑलवेज कम टू इंस्टाग्राम एंड आस्क मी अबाउट दीज फिल्टर्स. ये मैं खुद ही बना देता हूँ अपने. तो देर यू कैन टेक दी फिल्टर्स फ्रॉम मी, आई ईमेल यू दी फिल्टर्स. या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम, हमारे मैगजीन में आप यू कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड दे विल टेल यू, they'll send you the all the LUTs. I'll provide them and they'll send you all the LUTs. So do like the Instagram page of the magazine as well, which is Youth Magazine. Also एक और टूल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ. ग्रेडियंट पूछा था ना, एक ग्रेडियंट बताता हूँ मैं आपको. तो ग्रेडियंट टूल क्या होता है कि ना, इट हेल्प्स यू फॉर डूइंग सो मेनी थिंग्स. हम ग्रेडियंट पे आते हैं. जनरली यूज बाय ग्राफिक डिजाइनर्स, बट स्प्लिट टोनिंग में बहुत अच्छा टूल है यूज करने के लिए. हम ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट ले रहे हैं, हम एक नई लेयर बना रहे हैं. वे मेकिंग एम्प्टी लेयर. आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप कमांड करके ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हो. अब हमने ग्रेडियंट डाला. सो दिस इज व्हाट द ग्रेडियंट टूल डज. ठीक है, ये ग्रेडियंट है. आप जिस एंगल से डालोगे वो उस एंगल से चला जाएगा. अब मेरे को यहाँ पे थोड़ी सनलाइट दिखानी है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मेरे को यहाँ पे थोड़ी सनलाइट दिखानी है, तो मैं इधर इस पे जाऊंगा. व्हाट आई विल डू इज, मैं ना अपने प्राइमरी कलर्स और सब्जेक्ट इस कलर्स में चेंज करूंगा. सनलाइट येलोइश होती है, तो मैं थोड़ा येलोइश लूंगा. ठीक है, एंड देन शैडोज ब्लैक होती हैं, तो ऑब्वियसली आई टेक ब्लैक. और वाइस वर्सा, मैं एक्स से कभी भी चेंज, एक्स दबा के कभी भी चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, अब मैं ब्लैक्स पे, व्हाइट्स को, येलोस को ऊपर रखता हूँ, ब्लैक्स को नीचे रखता हूँ. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड. अब मैं फिल्टर पे जाऊंगा एंड मैं इनको फिल्टर करूंगा. ठीक है, तो ये थोड़ा 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 आप देखोगे, अगर आई विल डू इट नाइसली, तो ये सनलाइट का इफेक्ट देने लग जाएगा. ठीक है, दैट्स द वन वे हाउ वी यूज ग्रेडियंट. ठीक है, ये सनलाइट का इफेक्ट देने लग जाएगा. और फॉर इंस्टेंस हमको ये पसंद आया. ठीक है, ये पसंद, अब यहाँ पे बहुत ब्लैक्स हो गए. ठीक है, या तो आप वही तरीका मास्क बना के कर लो, या डायरेक्ट लेयर को डिलीट कर दो. ठीक है, फ्लो अपना बढ़ा के वो सारी चीजें करके डायरेक्टली लेयर को डिलीट कर दो, तो आपका ब्लैक ब्लैक रहेगा. या फिर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर भी बना सकते हो ग्रेडियंट में डायरेक्टली. वो हम एडवांस कोर्स में इसके बारे में बात करते रहेंगे. ठीक है, सो एक ये सनलाइट इफेक्ट आ गया इसके ऊपर, फोटो के ऊपर. सो ये एक बेसिक टचअप था फोटोशॉप बताने का, या एडिटिंग को बताने का. व्हाट एडिटिंग, इंटायर एडिटिंग प्रोसेस इज. मैंने सिर्फ आपको बेसिक टूल्स बताए हैं. फोटोशॉप इज मच मोर. देयर इज क्लोन स्टैम्प टूल, देयर इज सो मेनी थिंग. और हम ना एक एडवांस क्लास 100% रखेंगे, जो कि आपको जो प्रोफेशनल मॉडल एडिटिंग होती है वो एडिटिंग करने में आपको मदद करेगी. सो दिस इज व्हाट क्लोन स्टैम्प टूल डज इज. आई एम जस्ट शोइंग यू अ सिंपल वे हाउ इट डू. ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ वेबिनार. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको सेव कैसे करें. तो देखो भाई,
आप रॉ को कभी भी सेव नहीं कर सकते रॉ में, यू हैव टू सेव इट इन जेपेग या फिर किसी अदर फॉर्मेट में, ठीक है। आप एडिट करने के बाद रॉ को कभी भी रॉ में सेव नहीं कर सकते। यस, देयर वाज अ टूल 3-4 years बैक जिसमें लोग रॉ को रॉ में ही सेव कर लेते थे एडिट करने के बाद भी, बट नाउ इट इज बैंड और वो शायद ब्लैक मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। अब हम जाते हैं फाइल्स पे, सेव एज एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के बाद सेव एज वेब पे। तो जनरली मैं अपनी इमेजेस को एज अ वेब सेव करता हूँ, उसका मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। हम ना किसी भी इमेज को वेब पे इसलिए सेव करते हैं क्योंकि हमें अपलोड ही वेब पे करनी है उसको, ठीक है। अगर आपने प्रिंट निकलवाना है ना तो आप उसको जेपेग सेव करो, एक तो आप साइज में बचोगे, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी आप जब अपलोड करोगे, और फोटो का रिप्रेजेंटेशन स्पीड अच्छा आएगा, और द सोशल मीडिया वेबसाइट itself doesn't have to do much changes, ठीक है। जो आपके वो चेंजेस करते हैं, अपने फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्टर्स इन द सेंस जो अपने वहाँ पे वो सपोर्टिव चीज़ें लगाते हैं, जो फोटो को कलर सेम रखता है, बिट मैपिंग सेम रखता है, उसकी सारी चीज़ें सेम रखता है, वो आप यहीं पे करके दो तो आपके जो ओरिजिनल कलर सेव होंगे वही आएंगे। सो हाउ वी डू इट, हम ऐसे जाते हैं, हम फाइल्स पे जाते हैं, एक्सपोर्ट पे जाते हैं, सेव एज लेगेसी करते हैं उसको, वेब लेगेसी। मैं जनरली इनको जेपेग पे करता हूँ, ठीक है, जेपेग पे सेव करता हूँ मैं इनको। और जनरली आई डोंट हैव टू गो फॉर एनी सेटिंग्स अंटिल अनलेस आई सी इट हाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी, आई नो वी आर रशिंग आउट ऑफ टाइम बट मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये ना एक फोटो है, इसके हम नोज पे आ गए, ठीक है। क्वालिटी 60-100 सेम रहती है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, इट्स जस्ट द एमबी इंक्रीजेस बट क्वालिटी हमेशा सेम रहती है। तो मैं 60 पे हूँ, ठीक है। अब देखो कोई डिफरेंस आया फोटो में, नहीं। 100 पे गया, कैन यू सी एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं और नीचे आ गया, अब देखो पिक्सलेट हो गई फोटो, थोड़ा ऊपर आता हूँ, थोड़ी कम पिक्सलेट हुई, थोड़ा और ऊपर आता हूँ, थोड़ी कम पिक्सलेट हुई। बट 60 पे सेव करना इज ऑलवेज समझदारी, क्योंकि आप साइज में भी बचते हो, और अब ये लाइक ये टेक्निक्स हैं, काम करते करते आ जाती हैं, बट आई एम टेलिंग यू यू कैन डू इट दिस वे। आप यहाँ पे सेव करते हो और वेन एवर वेयर एवर यू वॉन्ट टू सेव इट यू कैन सेव इट, ठीक है। सो एक Q&A कर लेते हैं छोटा सा, कोई भी क्वेश्चंस होंगे अगर तो हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Q&A कर लेते हैं छोटा सा, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस देन आई विल वाइंड अप दिस एंड ओवर टू योगेश आफ्टर छोटे से क्वेश्चंस के बाद। एनीबडी आस्किंग फॉर एनी क्वेश्चन, पूछ लो प्लीज। So yes, you can visit me at the rate Grumpy Sailor on Instagram. Obviously, Wacom India, you can visit them as well. Please follow them. Youth Magazine, which is organizing all this and supported by Wacom India. I think किसी के पास questions नहीं है. How do you select exact color? अरे very easy यार. तुम्हें exact color set करना है ना, select करना है ना, तो it is very very easy. तो आप कलर पिकर पे आए, ठीक है, आपने ऑल्ट दबाना है, आपका कलर पिकर टूल टूल यहाँ पे आ जाएगा, आपने यहाँ से रेड ले लिया, आपने एग्जैक्ट कलर ले लिया, विच एवर कलर। आप पता है वेब से भी ले सकते हो, आप इंटरनेट से भी कलर ले सकते हो फोटोशॉप पे, बट उसके लिए आपको टैबलेट यूज करना पड़ता है, आप ऐसे जूम डाउन करते हो, कलर पिकर लगाते हो और फिर आते हो माउस से, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। तो हैंडी आता है इसमें इन चीज़ों में टैबलेट। सो दिस इज यू हैव हाउ यू हैव टू चूज एग्जैक्ट कलर। हाँ, अगर आप सैचुरेशन का और उन सब का एग्जैक्ट कलर मांग रहे हो, आई टेल यू आपको हिस्टोग्राम पढ़ना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू सी हिस्टोग्राम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, दिस इज न्यू आइडिया, वी कुड सेव एट वेब फॉर्मेट। यस, वेब फॉर्मेट पे सेव करना बहुत इजी है। डू सेव इट, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि आपको क्या डिफरेंस लगा। आई मतलब आई अश्योर यू आप इतने खुश हो जाओगे ना। ओके, कैन आई री एडिट द इमेज अगेन इन रॉ? यस यस, ऑब्वियसली यू कैन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये इमेज मेरी यहाँ पे खुल गई,
ठीक है। आपकी रॉ इमेज को फोटोशॉप कभी नहीं छेड़ेगा, आप जेपेग में सेव करते हो उसको, तो रॉ इमेज आपकी हमेशा वैसे की वैसी रहती है। अब आपने रीएडिट करना है इसको रॉ पे, तो आप कैमरा रॉ पे गए, कैमरा रॉ फिल्टर पे आ गए, ठीक है। कैमरा रॉ फिल्टर आपके सामने खुल गया। ये क्योंकि हमने इमेज एडिट करी हुई तो वो हाईलाइट्स वाला पार्ट है, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। कैमरा रॉ को 100% आप दोबारा खोल सकते हो, देयर इज नथिंग डिस्ट्रक्टिव। ओके ओके, आफ्टर अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग एंड सेविंग द पीएचडी, यस यू कैन, उसके बाद भी आप कर सकते हो। थैंक यू सिद्धार्थ। उसके बाद भी यस यू 100% यू कैन डू इट। वैसे जनरली कोई पीएचडी में सेव नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैंने इसको, चलो आप फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग मैंने इसको पीएचडी में सेव किया, अनटिल अनलेस मैंने सारे कंस्ट्रक्टिव वो बनाए हैं, जैसे मैंने लेवल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन बनाया हुआ है, और कलर बैलेंस मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना, और मैं इसको पीएचडी पे सेव करता हूँ कभी भी, तो आप जब वापस आओगे ना, यू विल ऑलवेज फाइंड दिस, यू कैन ऑलवेज चेंज इट। तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वो इमेज, ये वाली इमेज का बताना भूल गया, 1 मिनट में बताता हूँ। वैसे ये ब्लेमिशेस दूर करने के लिए होता है, ठीक है। अब मैं यूफ एडिट्स पे आया, ये वाली पीएचडी खोली मैंने, ठीक है, विच इज गेटिंग अपलोडेड टू द इंटरनेट, एंड सडनली बूम, ये पीएचडी खुल गई। या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इस पीएचडी को भी बंद, इसको भी बंद कर देते हैं, डोंट सेव। हम इधर आते हैं, हम इस पे बूम करते हैं, एंड बूम शाकलाका, सी, यू कैन सी दीज टू हेयर। आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को एडजस्ट कर सकते हो, एंड स्टिल बडी यू कैन ओपन कैमरा रॉ, आप कैमरा रॉ अभी भी खोल सकते हो। और प्राइमरी टूल तो भाई एडिटिंग का यही है, कुछ ज्यादा वंडर्स करने हैं देन यू हैव टू कम टू द मेन सॉफ्टवेयर। कोई और क्वेश्चन, देन आई विल हैंड इट ओवर टू योगेश। या गुड वन, थैंक यू सो मच। आई थिंक योगेश, you can take over. Yeah, sure. Yeah, I will stop sharing from here. Deep, this was really a wonderful session. Thank you so much. As a photographer myself, these were some really knowledgeable tips that you provided, whether it is the tint and shades, really amazing. Before we wind up, if you have any questions regarding Wacom tablet or how Wacom can be beneficial in your editing workflow, let us know. Give us a missed call, or you can message us directly. I provided you my phone number. Okay. And before winding up, we have a short video to show you. Okay, let me play this. Yeah. Yes, So this we is can a see. short video that we have created regarding the editing workflow around the globe that products people are using our products, whether it is the display one or the non-display one. So you can get a rough idea with this. Sure.